کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فساکانہ تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا، وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا۔ یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے، پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کرتے ہیں۔ تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے۔ تو جب پتھر حضور سے پیار کرے، درخت حضور سے پیار کرے، جانور حضور سے پیار کرے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں؟ اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو؟ ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے، ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے، اور ہماری دنیا بھی حضور ہے، ہمارا دین بھی حضور ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، ہماری تو کل کائنات ہی رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہے، اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے، اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی۔ تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے۔ اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سفر ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائی۔ آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں، جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو، ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا، علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے، یہ اس دور کا اوباما تھا، لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تحت نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوباما تھا۔ لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ، نام تو ہے حضور کے ساتھ۔ پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشاہی روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے، بلال کا کالا رنگ حوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے، اور رومی کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نشان بھی مٹ گیا۔ اگر چاہتے ہو کہ لازوال ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا۔
याद एक मुंडा था, उसको जानता कोई नहीं था। मैंने उसके मोहल्ले के लोगों से पूछा है, चंद उसके जो कुर्बत वाले लोग थे और वो जानते थे, वो कहते बचपन में बाहर निकल गया और हमें नहीं पता कि इस नाम का लड़का भी है। लेकिन फिर एक दिन आया कि हर शख्स का रुख ढोक कश्मीरिया की जानिब था और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आमर चीमा की गली के अंदर इतने गुलदस्ते पड़े हुए थे कि गुजरने की जगह नहीं। और जिसने उसको देखा था, शक पड़ा कि मैंने उसको देखा हुआ है, वो भी छाती तान के कहता था, हाँ मैं उसका यार हूं। यार उसे तो कोई जानता नहीं था, लेकिन जमाना उसका यार बन रहा है और लोग जो उसके वालिद से दूर की शनासाई रखते हैं वो भी कहते हैं जी मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात कैसे जागे और ये किस तरह शनासाई हुई? ये सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह नहीं तो लाहौर के कूचाए चाबक सवारों की कहानी सुन लो। बेटा लोहारों का है और दुकान पे ठक ठक करता है और उसे कोई गली में भी नहीं जानता। और फिर एक दिन आया, वो जमाने के सीनों के अंदर धक धक करने लगा। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला उस जमाने में जिनके 1 लाख मुरीदीन थे, कोई मामूली नाम नहीं है अमीर मिल्लत रहमा का। अमीर मिल्लत जनाजे में शामिल हुए, गाजी इल्मुद्दीन लोगों के कंधों पे जा रहा था और अमीर मिल्लत की आंखों में आंसू थे और कहने लगे, लोगों मैंने बड़े बड़े बादशाहों की कहानियां सुनी है, मेरे दिल में कभी उमंग नहीं जागी कि मैं फलां बादशाह होता। फकीर खुद शहनशाह होता है। कहा बड़े बड़े पहलवानों के तस्करे पड़े हैं, मेरे दिल में ये आरज़ू नहीं जागी कि फलां पहलवान में होता। फरमाने लगे हाँ हाँ मैंने बड़े बड़े वलियों के तस्करे पड़े हैं, मेरे दिल में ये तमन्ना भी नहीं हुई कि फलां वली मैं होता। आज मेरे दिल में रह रह के ख्याल आ रहा है, काश आज इस चारपाई पे मैं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से गाजी आमर चीमा के मिजार की पाइंटी पर एक सैयदजादे को रोते हुए देखा है और वो साथ कह रहा था, रब्बा मैं तेन ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना दे, मैनू ये कदमां दी मिट्टी ही बना। तो ये सरखुरी है हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता होने का, ये सिला नसीब होता। हर के इश्के मुस्तफा सामान उस बहरो बर दर गोशाए दामान उस्त। इकबाल कहता है कि अगर हुजूर का इश्क सामान जिंदगी बन जाए फिर क्या भूख रह जाती है बंदे को। फिर बहरो बर उसके दामन के कोने में बंधे हुए होते हैं और दुनिया उसके पीछे पीछे होती है और वो नजर उठा के भी नहीं देखता। अगर हुजूर के गुलाम बन जाओगे सारी कायनात तुम्हारी हो जाएगी। उसने अखलाक में सबसे अहम किरदार इंसान की जुबान का है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी शर्मगाह और अपनी जुबान की मुझे जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत दे देता हूं। इंसान के बहुत सारे गुनाहों का सबब इंसान की जुबान। झूठ भी जुबान बोलती है, बोहतान भी जुबान लगाती है, गीबत भी जुबान करती है, शिकवे भी जुबान करती है, गालियां भी जुबान देती है, सबको शतम ये भी जुबान का वजीफा है और किसी की इज्जत उछालना ये भी जुबान के जरिए है। तो जुबान के जुर्म बाकी सारे आज़ाद से ज्यादा है। इसलिए जो है वो जिसने जुबान को काबू में कर लिया उसने अपने आप को बहुत सारे फितनों से महफूज कर लिया। मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें और अपने शब व रोज का मुआखजा करें और अपनी जुबान को जो है वो हिफाजत में रखें। अल्लाह ताला ने इसको 32 दांतों के अंदर जकड़ के रखा है और 2 जबड़ों के अंदर रखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी संभाले संभलती नहीं है। और अल्लाह याज़ बिल्लाह सबको शतम तो आज हमारा शियारे जिंदगी बन गया और छोटे छोटे बच्चों की जुबानों पर इतनी गलीज गालियां। मैं एक दिन घर से निकला तो कोई
बस्ता भी डाला हुआ था, स्कूल जा रहा था। तो आगे कुछ बच्चियां, वो भी 5वीं 7वीं क्लास की होंगी, उसने इतनी गलीज और गंदी गाली दी बगैर किसी वजह के कि मुझे ऐसे लगा जिस तरह मेरे कानों में आग लग गई और मेरी सांस रुकने लगी। खैर मैंने हिम्मत करके तेज कदम उठा के उसको कंधे से पकड़ा, तो उसने जब पलट के मुझे देखा तो शर्मसार हो गया और शर्मिंदगी से उसको पसीना आ गया। मैंने उसको कहा, बेटे ये जो तूने गाली दी है, जमीन आसमान के दरमियान जितनी जगह है ना, ये जहर से भर गई होगी और तुझे शर्म नहीं आई कि तूने ये बात की। खैर उसने बड़ी शर्मिंदगी का इजहार किया। तो आज हमारा मुआशरा, ये एक अक्स बता रहा हूं कि इस उम्र के बच्चे और ये हमारे मुआशरे ने जो है वो जो रंग इख्तियार कर लिया हुआ है और आज गलाजत और गंदगी हमारे जहनों के अंदर घुल गई हुई। वो किसी जमाने में होता था कि सफर के दौरान किसी पब्लिक प्लेस पे या लारी अड्डे पे हम जाते तो वहां मजबूरन वाशरूम में जाना पड़ जाता, तो वहां इतनी गलीज चीजें और बातें लिखी होती कि शर्म से पानी पानी हो जाते। अब उनके हाथों में सोशल मीडिया आ गया, वही गंदे लोग और वही गलीज तरीन लोग जो पहले वाशरूमों में बैठ के गंदगी की जगहों पे बैठ के तहरीर किया करते थे, आज उन्हीं के हाथों में सोशल मीडिया आ गया है और ऐसी ऐसी मकरूह तस्वीरें और गलीज जुमले, अल-अयाज़ बिल्लाह। क्या ये एक मोमिन की शान है? एक मोमिन की जिंदगी ऐसी हो सकती है? आज हम ये बात कह रहे हैं कि मुल्क लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है और आज कोई खैर की बात यहाँ सोशल मीडिया पे आती है और किसी शख्स की समझ में वो बात नहीं आती, या उसके दिल दिमाग के अंदर कोई इस्लाम के बारे में कोई इतनी मोहब्बत नहीं, आप ये भी मान लें, और वो उस पर कोई बात कर देता है और उसके बाद फिर जिस तरह उसको गालियां दी जाती है, तो वो नहीं भी इस्लाम से दूर तो हम उसको धक्का देके इस्लाम से बाहर निकाल देते। तो मुझे बताओ कि जब हमारी मुआशरत का ये रंग होगा तो फिर हम कहाँ लुढ़कते हुए कहाँ जाके गिरेंगे। तो मैं आप सब नौजवानों को बिलखुसूस कहता हूँ कि ऐसे तमाम ग्रुपों से निकल जाएं और ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक खत्म कर लें कि जो गलीज और गंदी सोच के हामिल है, क्योंकि जब सोचों का गंद और गलाजत जब सामने आती है तो फिर रूह मैली हो जाती है, और जब रूह मैली हो जाए तो ऐसी रूहों पे अल्लाह के अनवार की बारिश नहीं होती। तो अपने आप को पाकीज़ा बनाओ, अपने तर्ज जिंदगी को खूबसूरत बनाओ,